السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر ایمان فاطمہ۔ تو چلتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ اپنے شوہر سے بحث کر رہی ہو؟ زبیر افندی تب کر بولے۔ آپ نے شاید سنا نہیں، میں نے کہا میری بیٹی ہے، مگر پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے۔ نائلہ افندی نے سرخ آنکھوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ آپ کے کہنے سے کیا یہ آپ کی بیٹی بن جائے گی نائلہ؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائے۔ میرے کہنے سے پہلے کی وہ بیٹی ہے، اور صرف میری ہی نہیں آپ کی بھی بیٹی ہے زبیر افندی، وہ زخمی لہجے سے بولی۔ ان کے لہجے میں کچھ تھا جس نے سب کو چونکا دیا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ہوش میں آؤ نائلہ، وہ غصے سے بولے۔ نہیں، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، میں پورے ہوش و حواس میں بول رہی ہوں۔ فاریہ میری اور آپ کی بیٹی ہے، زین میرا بیٹا نہیں ہے، مگر ہاں آپ کا بیٹا ضرور ہے۔ انہوں نے سب کے سروں پر بم پھوڑا۔ نائلہ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ زبیر افندی دھاڑے۔ آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے زبیر صاحب، مگر میرے دماغ میں اب بھی وہ فضیلہ کے کوریڈور میں آپ کی اور سمن صابری نہیں بلکہ سمن افندی کی گفتگو یاد ہے۔ مجھے اس کی بد دعا کی گونج یاد ہے زبیر، میں نے اس بد دعا کی گونج سے اپنا سکون کھو دیا تھا۔ یہ زین اسی بے بس اور بد نصیب سمن افندی کا بیٹا ہے۔ اس نے بد دعا دی تھی کہ آپ کبھی اپنی اولاد کو گود میں اٹھا نہ پائیں، مگر وہ بد دعا مجھے لگ گئی۔ پھر وہ بولتی چلی گئی۔ پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا، سب ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز بھی سن پا رہے تھے۔ زبیر افندی دھواں دھواں چہرے کے ساتھ کھڑے تھے اور فاریہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، مگر ایک شخص ایسا تھا جس کو لگا اس کا وجود کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، اور وہ زین تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ تہی دامن رہ گیا۔ پھر وہ اپنے پوجل قدموں کو گھسیٹتا ہوا نائلہ افندی کی طرف آیا۔ مام، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ میں آپ کا ہی بیٹا ہوں نا؟ اس نے نائلہ افندی کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تم بھی میرے ہی بیٹے ہو۔ جنم نہیں دیا تو کیا ہوا، اپنا دودھ پلا کر بڑا کیا ہے۔ جان ہو تم میری، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا اٹھا اور پھر دوڑتا ہوا وہ سیڑھیاں پھلانگتا چلا گیا۔ پری زیب گمسم سی کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ پری زیب بیٹے، آپ زین کے پاس جاؤ، انہیں آپ کی ضرورت ہے، نائلہ افندی نے کہا۔ پری زیب جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی اور نائلہ افندی فاریہ کی طرف آئی جو زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ فاریہ میری جان، انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کیوں؟ میں نے ہمیشہ دعا کی کاش میری ماں زندہ ہوتی، مگر آپ نے تو زندہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مار دیا میری نظروں میں، وہ تڑپ کر بولی۔ I'm sorry بچے، مجھے بد دعا سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچا کہ سمن سے ہاتھ جوڑ کر تمہیں مانگ لوں گی، مگر جب وہ فوت ہو گئی تو زین بہت لاغر تھا، اسے ماں کی ضرورت تھی، تو مجھے اپنی بیٹی کو خود سے دور کرنا پڑا، مگر خدا گواہ ہے میری دعاؤں میں تم ہمیشہ رہی ہو۔ جب تمہیں دیکھا دل کیا سینے سے لگا لوں، مگر زین بہت اور معصوم اور ڈرپوک تھا، تو اسے ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے تمہیں توڑ دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم نائلہ افندی کی بہادر بیٹی ہو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولتی چلی گئی۔ میں کبھی آپ کو اپنی موم نہیں کہوں گی، نہ آپ کے شوہر کو ڈیڈ، کیونکہ میرے بابا وہی ہیں جو سائرہ آپی کے بابا ہیں، اور میری ماں سمن ہی ہیں، فاریہ نے غصے سے کہا۔ پھر وہ احمر کا بازو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز احمر، مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ نہیں فاریہ میری جان، مجھ سے دور مت جاؤ پلیز، وہ تڑپ اٹھی۔ فاریہ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ ہم اجازت چاہتے ہیں اب زبیر صاحب، پری زیب کو فی الحال یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، پروفیسر صاحب نے سر جھکائے زبیر افندی سے کہا، اور پھر وہ سب لوگ وہاں سے نکل آئے۔ لاؤنج میں اکیلے نائلہ افندی اور زبیر افندی رہ گئے۔ پری زیب کمرے میں آئی تو زین نے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دی تھی اور خود بیڈ کے ساتھ زمین پہ بیٹھا تھا۔ پری زیب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ زین، اس نے پکارا تو زین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر وہ تڑپ ہی اٹھی۔ زین پلیز خود کو اذیت مت دو۔ کیا کروں میں پری زیب؟ تم ہی بتا دو مجھے، میرا دل پھٹ جائے گا، وہ کرب سے بولا۔ شش، ایسا مت بولو پلیز، وہ اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ میرا دل غائل ہو گیا ہے یہ سن کر ہی کہ میری موم میری جنم دینے والی موم نہیں ہے، وہ اس کی گود میں چہرہ چھپا کر کرب سے بولا۔ زین بیبی، میرا سونا، انہوں نے جنم نہیں دیا تو کیا ہوا، انہوں نے کتنی محبت سے پالا ہے وہ تمہیں، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، شاید فری آپی سے بھی زیادہ۔ دیکھو
जब वो रिश्ता लेकर गई तो वो इम्तिहान में फारिया को डाल कर आई कि तुम्हें अजियत ना हो। प्लीज़ वो एक दर्द के साथ पूरी ज़िंदगी जी हैं। अगर आज तुम इन्हें दर्द से नहीं निकालोगे तो इनके एहसानात को जुटलाओगे। उन्हें इस वक्त तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। परीज़ेब ने मोहब्बत से इसे समझाया। ज़ैन आंसू साफ करता सीधा हुआ और इसने परीज़ेब को गले लगाकर उसका माथा चूमा। थैंक यू माई लव, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। ज़ैन ने मुस्कुरा कर कहा, चलें मोम के पास? परीज़ेब ने पूछा। ज़ैन ने इस बात में सर हिला दिया। सानिया की आज डील थी तो वो ब्लू मून क्लब में मास्क मेकअप में आई थी और हमेशा की तरह स्कार्फ से चेहरा छुपाया हुआ था। वो चलती हुई एक सोफ़े पे बैठ गई। कुछ देर बाद एक लंबे बालों वाला लड़का आया और उसने पास आकर सलाम किया और डील के मुतल्लिक बताने लगा। फिर अचानक इसने किसी को आंखों से इशारा किया जो कि सानिया की नज़रों से मख्फी न रहा। इसने ऐनक में एक कसरती बदन के लड़के को अपनी तरफ आते देखा। वो फुर्ती से उठी। इसने तेज़ी से कुर्सी उठाकर उस लड़के पे उछाल दी। फिर फुर्ती से भागती हुई बाहर को लपकी और पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई और गोली इसके कंधे को छूकर गुजरती हुई चली गई। इसकी सिसकारी निकली, फिर भी वो रुकी नहीं बल्कि एक गाड़ी में आकर बैठकर इसमें बैठे आदमी की गर्दन पर पिस्टल की नाल लगाई। खबरदार, गाड़ी चुपचाप चिल्लाओ, वो गर्रा कर बोली। वो आदमी मुड़ा तो वो सफ्तर था। वो ज़ोर से चौंकी, फिर इसे याद आया वो तो मास्क मेकअप में है और सफ्तर ने इसे नहीं पहचाना होगा। इसने खुद को संभाला और गाड़ी चलाने को कहा। सफदर फुल स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ इसे न जाना कहाँ से कहाँ लेकर आता हुआ इसके अपार्टमेंट के सामने आकर रुक गया। सानिया, तुम्हारा घर आ गया है। सफदर की बात पर सानिया की आंखें फैल गईं, मगर फिर इसने अपना मास्क खींचकर उतार दिया। फिर सफदर इसे थाम कर दरवाजे तक लाया। सानिया ने कीज़ निकाल कर दरवाज़ा खोला और फिर वो दोनों अंदर दाखिल हुए। सफदर ने इसकी मरहम पट्टी की और संजीदगी से उसे देखने लगा। तेरे को कैसे पता लगा मैं सानिया हूँ? इसने झिझकते हुए पूछा। यहाँ बसती है तू मेरे? जब तू आस पास होती है ना तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। सफ्तर ने सीने पे हाथ रखते हुए कहा। कोई फ़िल्म नहीं चल रही, सानिया नागवारी से बोली। जब तू जानती है हकीकी ज़िंदगी ये फ़िल्म नहीं तो फिर तू क्यों ये चोर पुलिस का खेल खेल रही है? हाँ, तुझे तेरी इन कांटदार आंखों से पहचाना था, सफ्तर ने कहा। वो गहरा सांस लेकर टेक लगा कर बैठ गई। अब तो बता कौन है तू? क्यों बताओ तेरे को? तो मेरा लगता क्या है? हाँ, बाकी अगर पुलिस को बताना चाहता है तो मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो इत्मीनान से बोली। सफ्तर ने गहरा सांस भरा। जान हो तुम मेरी सानिया, तो तुझे दर्द दे ही नहीं सकता। गलत भी होगी तो तुझसे प्यार करता रहूँगा। सफ्तर ने इसके पास होते हुए कहा। तू मेरे से दूर रहा कर, सानिया ने चिल्ला कर कहा। सफ्तर उसके चेहरे पे फैली सुर्खी से महसूस हुआ। कुछ खाना है तो पका दूं? नहीं, तुम जाओ, हानिया आती होगी, वो बना देगी, इसने जल्दी से कहा। सफ्तर सर हिलाकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद बेल बजी तो सानिया तेज़ी से दरवाजे पे आई और हॉल से बाहर देखा तो क्लब वाले लड़के को देखकर चौंकी। फिर वो तेज़ी से मुड़ी और फर्स्ट एड बॉक्स और ड्रेस छुपा कर जार पूंछ करके इसने पानी के छींटे गर्दन और पीछे कमर पर डाले और सर पर दुपट्टा बांधकर वो झाड़ू पकड़े दरवाजे की तरफ चल दी। हानिया ने गाड़ी अपने अपार्टमेंट के सामने रोकी और सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई तो दरवाजे के पास खड़े वकास को देखकर चौंकी। आप? हानिया ने पास आकर कहा। वकास ने चौंक कर देखा। तुम यहाँ? वकास ने हैरत से पूछा। ये सवाल मेरा है क्योंकि ये घर मेरा है, हानिया ने तनक कर कहा। मगर ये तो सानिया जी का घर नहीं है, वकास ने पूछा। हानिया उसकी बात पे चौंकी। आप मेरी आपी को कैसे जानते हैं? हानिया ने हैरत से पूछा। इस बार वकास इसकी बात पर चौंका। ओह, तो सानिया जी आपकी बहन है? वकास ने मुस्कुरा कर पूछा। जी हाँ, हानिया ने कहा। एक्चुअली मिलना था उनसे मुझे, वकास ने कहा। फिर दरवाज़ा खुला और बिखरे हुए वाली सानिया को देखकर चौंका क्योंकि वो क्लब वाली लड़की से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वकास उलझ गया। जी आप कौन? सानिया ने हैरत से पूछा। मेरा नाम इंस्पेक्टर वकास है, वकास ने कहा। इंस्पेक्टर का मेरे घर क्या काम? सानिया ने हैरत से पूछा। वकास ने लब काटते हुए उसे देखा, फिर अंदर दाखिल हो गया। आज आप अपनी जॉब पे क्यों नहीं गई? वकास ने इर्द गिर्द का मुआयना करते हुए पूछा। मेरी जॉब मेरी मर्जी, काम वाली नहीं आई थी, इसलिए खुद आज सफाई का फैसला करते हुए छुट्टी की थी, सानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। वकास ने इस बात में सर हिला दिया और फिर सोफे पे चौड़ा होकर बैठ गया। सानिया लब बेच कर रह गई। मिस्टर वकास, काम की बात करें, हम शरीफ लोग हैं, तो इस तरह आप हमारे घर बैठेंगे तो लोग मशकूक हो सकते हैं, हानिया ने नागवारी से कहा।
آپ کی بہن بہت بدتمیز ہے، لیکن میری بہن کو بہت پیاری لگتی ہے، تو آپ سے اسی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں ثانیہ جی، وقاص نے مسکرا کر کہا۔ ہانیہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے ابھی اپنی بہن کی شادی نہیں کرنی، اب آپ دفع ہو سکتے ہیں، ثانیہ نے غصے سے کہا۔ ہانیہ نے تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چلیں میں آپ کو باہر تک چھوڑاؤں، ہانیہ نے کہا، اور وقاص اس کے ساتھ چلتا ہوا باہر تک آیا۔ مس ہانیہ، آج ایک ڈان لڑکی کے پیچھے تھا اور اسے گولی مار دی تھی میں نے۔ سانی ڈان نام ہے اس کا، تو مجھے لگا وہ آپ کی بہن ہے تو بس شک دور کرنے آیا تھا، وقاص نے کہا۔ ہانیہ کا رنگ ایک پل کے لیے بدلا اور دوسرے پل وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ پھر وقاص کے جانے کے بعد وہ تیزی سے اندر آئی اور ہانیہ کو چھو کر دیکھنے لگی۔ شش، ثانیہ نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور پھر کاغذ پینسل سے ورق پر کچھ لکھنے لگی اور اس کی طرف بڑھایا۔ کوئی بات مت کرو، ہو سکتا ہے وہ شخص کوئی آلہ چھپا کر گیا جس سے وہ ہماری گفتگو سن سکتا ہے۔ ہانیہ کا پڑھ کر رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ ہی اب کیا ہوگا؟ اس نے لکھ کر پوچھا۔ صبر، ثانیہ نے لکھا۔ ہانیہ تم ہنڈیا بنا لو، میں باقی کی صفائی کرتی ہوں، ثانیہ نے اونچی آواز میں کہا اور ہانیہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وقاص نے ڈکٹا فون صوفے کے پشت پہ لگا دیا تھا، پھر وہ گاڑی میں آ کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اسے ان کی آوازیں سنائی دی، مگر وہ دونوں عام گفتگو ہی کر رہی تھی۔ وقاص نے جلا کر ہیڈ فون اٹھا کر سائڈ پہ رکھے۔ لگتا ہے اس بار میرا اندازہ غلط ہے، میں بھی شک کر رہا ہوں اس ثانیہ پہ، وہ جلا کر سوچتا گیا۔ پھر وہ گاڑی دوڑاتا وہاں سے نکل گیا۔ گھر پہنچا تو فرح بچوں کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی، وہ سلام کرتا ہوا پاس بیٹھ گیا۔ وقاص پلیز یہ ثانیہ کے گھر والوں کو ڈھونڈا، رشتہ لے کر جانا ہے مجھے۔ وقاص نے گہرا سانس بھرا۔ اپیا وہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے، وقاص نے جلا کر کہا۔ ہائے اللہ، ایک تو تیرے نخرے ختم نہیں ہوتے، اب خود ہی ڈھونڈ لے لڑکی اور شادی کر لینا، کیونکہ میں 15 دن کے بعد واپس جا رہی ہوں، وہ تپ کر بولی۔ اچھا ناراض تو نہ ہوں، اس کے علاوہ جس سے کہیں گی چپ چاپ کروا لوں گا، منگنی ہے شادی، جو بھی آپ کو کروانا چاہے، وقاص نے کہا۔ ہائے اللہ، کتنی پیاری لڑکی تھی ہانیہ، وہ کڑ کر بولی۔ وقاص لب کاٹ کر رہ گیا۔ اچھا میں کپڑے چینج کر لوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نہا کر وہ نکلا اور شیشے کے سامنے وہ شرٹ لس کھرا بال ٹاول سے صاف کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر اپنے کسرتی بدن پہ پڑی۔ یار وقاص، لڑکیاں مرتی ہیں تیرے ایک نظر کے لیے، مگر یہ لڑکی جس نے تیرے دل کو چھوا، ایسے دیکھتی جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ بہت عجیب غریب ہیں دونوں بہنیں۔ پھر وہ زور سے چونکا۔ عجیب و غریب، او گاڈ، یہ کیوں نہیں سوچا میں نے کہ ان کو اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے آتے ہوں گے، کیونکہ سانی ڈان وہ ذہین ترین لڑکی ہے کہ پولیس کے خلاف وہ ایک بھی ثبوت نہیں چھوڑتی۔ مطلب اسے پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں نے اس کے گھر ٹکٹا فون چھپایا ہے۔ وہ بڑبڑایا اور پھر تیزی سے باہر نکل کر فرح کے پاس آیا۔ اپیا اٹھے، فوراً تیار ہو جائے، ہمیں ہانیہ کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے۔ وقاص نے کہا۔ ہیں، یہ تجھے اچانک کیا ہو گیا؟ فرح کا حیرت سے منہ کھلا۔ چلے نا، وقاص چلا کر بولا تو وہ اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔ اگر تم دونوں لوگوں نے میرا رشتہ ایکسیپٹ کر لیا تو مجھے سمجھ آ جائے گا کہ تم ہی ثانی ڈان ہے، کیونکہ ہانیہ، تم اور تمہاری بہن میرے شک کے دائرے سے نکلنے کے لیے یہ رشتہ قبول کرو گی، مگر اس سے میرا شک دور نہیں مضبوط ہوگا، کیونکہ اوور سمارٹ بننے کے چکر میں تم غلطی کرو گی اور میں وقاص ہوں جس کا ذہن تم کبھی نہیں پڑھ پاؤ گی۔ وقاص دل ہی دل میں مخاطب ہوا اور پھر اطمینان سے مسکرا دیا۔ زبیر افندی نے زاروں قطار روتی اپنی محبوب بیوی کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ کے۔ ایم سوری جانم، میں نے وہ سب جو بھی کیا آپ کے لیے کیا، وہ نم لہجے میں بولی۔ نائلہ افندی نے زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ زبیر صاحب، میرے سے ایک بار بات تو کر لیتے، مگر آپ نے کسی کی زندگی کو کھلونا ہی سمجھ لیا تھا، مگر میں آپ سے نفرت نہیں کر پائی کیونکہ آپ کی محبت کی شدت نے مجھے نفرت کرنے نہیں دی، مگر میں کیسے کہوں کہ اذیت میں برسوں جلی ہوں۔ دل کہتا تھا ایک بار سب کہہ دوں، مگر پھر زبان سے کچھ بھی ادا نہیں ہو پاتا تھا۔ میں کیسے کہوں کہ کشمکش میں میں نے اپنا سکون کھو دیا۔ آج جب سب کہہ دیا تو میں نے برسوں بعد جس بیٹی کو پایا اسے کھو دیا، وہ تڑپ کر بولی۔ کچھ نہیں کھویا آپ نے مام، آپ کا بیٹا آپ کو آپ کی بیٹی ضرور لوٹائے گا۔ پیچھے سے زین کی آواز گونجی تو وہ چونک کر ملی، اور پھر انہوں نے اپنی باہیں پھیلائی تو زین ان کے سینے کے ساتھ آ کر لگ گیا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، زین نے کہا۔ نائلہ افندی نے اس کا ماتھا چوم لیا۔
زین بیٹے۔ پھر وہ اٹھ کر جانے لگا تو زبیر افندی نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ زین ان کی طرف مڑا۔ مسٹر زبیر افندی، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں آج سے ہر رشتہ توڑتا ہوں، زین نے چبا چبا کر کہا اور پھر پری زیب کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا۔ فاریہ کو سب چپ کروا تھک گئے تھے مگر اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ السلام علیکم، زین اور پری زیب نے اندر آ کر سلام کیا تو سب چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ زین چلتا ہوا فاریہ کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ فاریہ، آپ جانتی ہیں نا کہ ہماری پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ میں ہمیشہ لڑکیوں سے بھاگتا تھا مگر آپ سے جب ملاقات ہوئی تو میرے دل میں آپ کے لیے عقیدت پیدا ہوئی جس کو میں کچھ اور ہی سمجھا، جبکہ وہ تو ہمارے خونے رشتے کی کشش تھی۔ ہماری مائیں مختلف ہیں تو کیا ہوا، مگر جس ماں سے آپ نے جنم لیا اس ماں سے میرا دودھ کا رشتہ ہے۔ میں سمن ماں کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ آپ جانتی ہوں، مگر میں موم کے بارے میں جانتا ہوں۔ وہ نہ صرف بیسٹ موم ہے بلکہ وہ دنیا کی بیسٹ عورت ہے۔ انہوں نے مجھے ہمدردی سے اپنا کر محبت کا رشتہ بنایا اور ایسی عورت کہیں نہیں ملے گی۔ تم اور میں بہت خوش نصیب ہیں کہ ہماری موم نائلہ افندی ہے۔ تم نے اس دن کہا تھا نا کاش وہ تمہاری موم ہوتی تو تمہیں تمہارا احمر دلوا دیتی، تو وہ تمہارے لیے احمر کو اور میرے لیے پری زیب کو لے آئی، تو اب ان کو اپنانے سے کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ پلیز، وہ برسوں تڑپی ہیں، انہیں خوش رہنے کا حق دے دو پلیز۔ فاریہ اس کا ہاتھ تھام کر بولتا چلا گیا۔ فاریہ نے اس کی باتوں پر جھکا ہوا سر اٹھایا۔ مگر زین، میرے اندر بری طرح گھاؤ لگا ہے، وہ نم لہجے میں بولی۔ فاریہ، آپ موم کے گھاؤ کا سوچو تو آپ کو اپنے گھاؤ بہت معمولی لگیں گے۔ انہوں نے اپنے پیار، اپنے محبوب کے دھوکے کو سہا، سمن ماں کی لعن طعن اور بد دعاؤں کو سہا۔ تم سے اتنی محبت تھی مگر وہ تمہیں درد دیتی تھی تو اس سے زیادہ وہ درد میں مبتلا ہو جاتی تھی، زین نے کہا۔ فاریہ نے کرب سے دیکھا۔ تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ زین نے پوچھا۔ فاریہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر زین کچھ دیر تک بیٹھا، پھر فاریہ کو لے کر وہ افندی ولا کے لیے نکل گیا۔ وہ دونوں جب گھر پہنچے تو نائلہ افندی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ فاریہ اور زین کو دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ فاریہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور ان کے گلے لگ کر رو دی۔ پھر نائلہ افندی رات کو بھی اسی کے ساتھ سوئی اور زین کچھ دیر بیٹھا اور پھر اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ بیل کی آواز پر ہانیہ نے چولہے کے نیچے جلتی آگ بند کی اور باہر نکل آئی۔ اس نے ہال سے باہر دیکھا تو فرا اور وقاص کو دیکھ کر چونک گئی۔ پھر اس نے دروازہ کھولا۔ فرا جلدی سے اسے دیکھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ پھر ہانیہ ان کو لاؤنج میں بٹھا کر ثانیہ کو بلانے چلی گئی۔ السلام علیکم۔ کچھ دیر بعد ثانیہ نے اندر داخل ہو کر سلام کیا۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے ساتھ فرا نے وقاص کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ پتہ ہے وقاص نے ہی ڈھونڈ نکالا آپ کے گھر کو۔ مجھے تو ہانیہ پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی تو میں رشتہ لے کر آنا چاہتی تھی مگر آپ کے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا، فرا نے کہا۔ ہانیہ محض پہلو بدل کر رہ گئی۔ بہت خوشی اور اعزاز کی بات ہے یہ ہمارے لیے، مگر سوری ہم ایسے ہی رشتے نہیں طے کر سکتے۔ کچھ دنوں کا وقت دے دیجیے، ہم آپ کو سوچ و بچار کے بعد بتاتے ہیں، ثانیہ نے کہا۔ پھر وہ دونوں کچھ دیر بعد اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے مگر ثانیہ کی نظروں نے دیکھا کہ وقاص نے صوفے کی سائڈ پہ لگا ڈکٹا فون اتار لیا تھا۔ پھر بھی ان کے جانے کے بعد اس نے اسے اچھے سے چیک کر لیا کہیں اور تو نہیں لگا ڈکٹا فون، مگر اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ ثانیہ گہرا سانس لے کر دھپ سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ہمیں اس رشتے کے متعلق سوچنا ہی پڑے گا کیونکہ اگر انکار کر دیا تو یہ شخص ہمارے پیچھے لگ جائے گا، مگر ہاں کی تو ہماری ہی نظروں میں رہے گا۔ تو ہانیہ تمہیں اس انسپیکٹر سے شادی کرنی پڑے گی، ثانیہ نے کہا۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اگلے دن ثانیہ نے رشتے کے لیے ہاں بول دیا۔ فرا نے اگلے دن انہیں شاپنگ کے لیے بلوایا تھا۔ اگلے دن وہ دونوں شاپنگ مال پہنچی اور ہانیہ نے اپنی پسند کا ڈریس چوز کیا اور پھر وقاص اسے لے کر ریسٹورنٹ ایریا میں آیا۔ ایکچولی میں بہت شرمندہ ہوں ہانیہ، بس تمہاری بہن کو کوئی اور سمجھ لیا تھا، وقاص نے کہا۔ اچھا، مگر کون سمجھا تھا کہ وہ کون ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ وہ ایک ہے لڑکی ثانی نام کی، بہت خطرناک کرمنل ہے، وہ سمجھ لیا تھا، وقاص نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ریئلی؟ آپ کو میری معصوم سی بہن کرمنل لگی؟ ہاں سو فنی یار، وہ کھلکھلائے۔ یہ جو تم اتنا مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو؟ وہ گنگنایا تو ہانیہ گھبرا گئی۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ دھیما سا بولی۔ ارے مذاق کر رہا ہوں یار، وقاص نے مسکرا کر کہا۔ پھر پاکٹ سے کنگن نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کنگن میری ماں کا ہے تو آج تمہاری امانت تمہیں دے رہا ہوں۔
वकास ने कहा। हानिया ने झिझकते हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। वकास ने मुस्कुराकर कंगन पहना दिया। फिर वो उन्हें घर ड्रॉप करके वापस चला गया। हानिया घर में आकर गिनने वाले अंदाज में सोफे पे बैठ गई। क्या हुआ, थक गई? सानिया ने पूछा। इंस्पेक्टर वकास को बर्दाश्त कर रही हूँ तो थकूंगी ही ना। बड़ा खुद को तो समझता है। पता है माफ़ी मांग रहा कि तुम्हारी बहन को गलत समझा, बेवकूफ़ कहीं का। न जाने पुलिस फोर्स में सब बेवकूफ़ी क्यों भरे होते हैं कि खूबसूरत लड़की को देखकर रेशे ख़त्म हो जाते हैं। मगर खैर इसके शक से जान छुटी। मगर प्लीज़ आप इस इंसान से भी जान छुड़वा दें। वो चिल्लाई। यार इतना अच्छा तो है वकास, फिर पसंद भी बहुत करता है वो भी और उसकी बहन भी। तुम्हें कहीं तो शादी करवानी है तो उसी से करवा लो, सानिया ने कहा। उफ आपको ख़तरा रहेगा, हानिया ने कहा। मैं ये काम छोड़ दूंगी और आम इंसानों की तरह जी लूँगी, सानिया बोली। हानिया पुरसोच अंदाज में सर हिलाकर रह गई। वकास ने लैपटॉप ऑन करके हेडफोन कान को लगाए। फिर कुछ देर के बाद खड़खड़ की आवाज़ आई। फिर सानिया और हानिया की गुफ्तगू होने लगी। जैसे जैसे गुफ्तगू होती गई वकास के माथे पे बल पड़ गए। फिर इसके चेहरे पर तलख मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ ना, मगर देखो तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ के जाल में फंस गई चूहे की तरह, वो तंज़िया अंदाज में बढ़ाया। फिर अगले दिन वो लोग मंगनी की अंगूठी पहनाने हानिया के घर पहुँचे। फिर कुछ देर के बाद स्काई ब्लू फ्रॉक पहने हानिया अंदर दाखिल हुई और वकास भी उसे देखकर टटका, मगर फिर सर झटक कर इसने खुद पे काबू किया। अंगूठी पहनाने के बाद वकास और हानिया अपार्टमेंट से बाहर निकल आए और टहलते टहलते नीचे आ गए। वकास वक्तन फ़वक्तन इसके बेजार बड़े चेहरे पर नज़र डाल रहा था। तुम्हें पता है हानिया, मुझे सानी डॉन का पता लग गया है। कल मेरी ड्यूटी से छुट्टी है, परसों सबसे पहले सानी डॉन जेल की सलाखों के पीछे होगी, वकास ने कहा। हानिया ने चौंक कर देखा। अच्छा कौन है वो और कैसे पता लगा, हानिया ने पूछा। वकास ने उसे गहरी निगाहों से देखा। फिक्र मत करो हानिया, तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है और न शादी करने की ज़रूरत है। मैं अपनी अपिया को संभाल लूँगा, मगर तुम्हारे लिए हमेशा दुख रहेगा कि तुम आगे बहुत दुख सहने वाली हो। और हाँ, कंगन ज़रूर वापस कर देना। वकास की बेतरतीब गुफ्तगू से हानिया के दिल में कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। फिर कुछ देर के बाद फराह भी नीचे आ गई। वकास के जाने के बाद वो भागती हुई अंदर आई और ड्रेसिंग पर रखा कंगन उठाकर देखने लगी। फिर टटोलते हुए कंगन के निचले हिस्से पर लगी चिप देखकर हानिया का रंग जर्द पड़ गया। फिर वो तेज़ी से भागकर बाहर निकली और सानिया को ज़रूरी काम का कहकर सफदर के फ्लैट पहुंची। इसने बेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और सफदर की शक्ल दिखाई दी। सफदर ने चौंक कर उसे देखा। सफदर भाई, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे, वो नम लहजे में बोली। ओ कम, सफदर ने चौंक कर कहा। फिर वो दोनों लाउंज में पहुंच गए। क्या हुआ, सब ठीक है ना सानिया? सफदर ने उसके सोते हुए चेहरे को देखकर पूछा। वो कुछ कहने की बजाय रोने लगी। सफदर उसके रोने पर घबरा गया। फिर वो जो बोलती गई इसने सफदर के होश उड़ा दे। आप मेरी आपी को लेकर यहाँ से कहीं चले जाएं, वो नम लहजे में बोली। सफदर सर पकड़कर बैठ गया। मैं कहती हूँ करता हूँ कुछ, मगर सबसे पहले हमें इस इंस्पेक्टर को रोकना होगा फिलफोर, सफदर ने कहा। मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, हानिया ने कहा और फिर वकास के लिए मैसेज छोड़ दिया। आज होटल में बाकायदा अहमद फारिया परिजेब जैन की एंगेजमेंट का फंक्शन था। दोनों दुल्हनों ने वाइट और ब्लू ओपन शर्ट्स पहन रखी थी और दोनों दुल्हों ने वाइट शेरवानियाँ पहनी थी। मंगनी की रस्म के बाद वो लोग स्टेज पर बैठे गपशप कर रहे थे कि सानिया और हानिया स्टेज पर आती दिखाई दी। कंग्रेचुलेशन, सानिया और हानिया ने विश किया। थैंक यू सो मच, और आपको भी हानिया की मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो, परिजेब ने कहा। वैसे सानिया, अब मेरे ख्याल में आपकी भी मंगनी हो जानी चाहिए। कब तक अपने होने वाले को वेट करवाओगी? जैन ने सफदर की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मेरा अभी कोई मूड नहीं अपनी बर्बादी करवाने का, वो मुंह बनाकर बोली। सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। फिर परिजेब ने गुमसुम सी हानिया को देखा तो चौंकी। फिर इसने सफदर को कोई इशारा किया जो कि परिजेब से मख्फी नहीं रहा। कुछ देर बाद सफदर वहाँ से निकला तो पीछे से हानिया भी निकल गई। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, परिजेब ने कहा। फिर उतरकर स्टेज से तेज़ी से उनके पीछे आई और वो दोनों राहदारी में खड़े थे और हानिया रो रही थी। परिजेब उनकी तरफ बढ़ी और ओट में होकर उनकी गुफ्तगू सुनने लगी। अच्छा तुम रो मत, मैं सानिया को
अगवा भी करना पड़ा तो वो भी कर लूँगा। सफदर की आवाज़ सुनाई दी। सफदर भाई प्लीज़ मेरी आप भी किसी इंस्पेक्टर से बचा लें, वो अगर जेल चलेगी मैं कैसे जी पाऊँगी। हानियों की सिस्सियों के दरमियान की गई बात ने परिजेब को मुतवहिश कर दिया। वो तेज़ी से बाहर निकली तो सफदर और हानिया घबरा गए। तुम लोग ये बात सानिया से छुपा कर ठीक नहीं कर रही, उसकी जान को ख़तरा है और तुम लोग ये सब छुपा रहे हो। वो पास आकर तप कर बोली, आप भी अपिया की सच्चाई जानती हैं? हानिया ने हैरत से पूछा। यस, मैं और मोम जानते हैं। परिजेब की बात पर वो दोनों हैरान रह गए। अब तुमने इस इंस्पेक्टर वकास से क्या कहा है? परी ने पूछा। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। हानिया ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम कल ही उससे मिलने चलेंगे। परिजेब ने मोहब्बत से कहा। हानिया की आंखें छलक उठी। फिर परिजेब मिसिस नाइला फंदी की तरफ बढ़ गई। 7 स्टार होटल के एक कैबिन में नाइला फंदी, परिजेब और हानिया बैठे इंस्पेक्टर वकास का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद कैबिन का दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर वकास हानिया के साथ 2 और औरतों को देखकर हैरान हुआ। वकास को हानिया का मैसेज आया था और यहाँ बुलाया था। वकास गहरा सांस भरता सामने रखी चेयर पर बैठ गया। तो तुम इन NGO वाली खातून को लेकर आई हो, मेरे ख़िलाफ़ कोई बयान बनाना चाहती हो? तो आप ख़वातीन जान लीजिए मुझे हराना आसान नहीं। वकास ने तलख लहजे में कहा। हम कोई प्लान नहीं बना रहे, सिर्फ रिक्वेस्ट करने आई हैं कि ये केस से हट जाएं। नाइला फंदी ने संजीदगी से कहा। वाह क्या बात है, धमका रही हैं मुझे आप, मगर अफसोस मैं आपकी धमकियों में नहीं आने वाला। आप पैसे के ज़ोर से मुझे ना तो ख़रीद सकती हैं, ना ही मैं बिकने वाला हूँ। मैं सानिया डॉन को एक्सपोज ज़रूर करूँगा और अपना फ़र्ज़ निभाऊँगा। वकास ने कहा। आपको ख़रीदना नहीं चाहते हम, ना ही आपकी ईमानदारी को ख़रीदेंगे, क्योंकि ईमानदार ऑफिसर सदियों बाद पैदा होते हैं। स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर वकास ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन क्या सानी डॉन ने मुल्क में कोई वहशत फैलाई है? आपके किए गए कारनामे में सानी डॉन ने एक किरदार निभाया है, चाहे वो लड़कियों को अगवा करने वाला गैंग हो या फिर लोगों को नाहक मानने वाली गैंग। इनको पकड़ाने में हमेशा सानिया आगे रही है। नाइला फंदी की बात पे वकास चौंक गया। प्लीज़ वकास, मैंने हमेशा आपको दर्द दिया है, इस बात को दिल में मत रखें। मैं ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ, मगर प्लीज़ मेरी आपी को छोड़ दें। वो आइंदा ये काम भी नहीं करेंगी, मैं वादा करती हूँ। हानिया घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोली। वकास लब बेंच कर रह गया। इंस्पेक्टर वकास एक बार सानी जैसी आम सी लड़की का सानी डॉन बनने की रीज़न जानने, फिर जो चाहे वो करना वो कर लीजिएगा, परिजेब ने कहा। फिर वो जैसे जैसे बोलती गई इंस्पेक्टर वकास का रंग बदलता चला गया। फिर वो गहरा सांस भरता हुआ उठा। सॉरी लेडीज़, मैं अपने फ़र्ज़ से कभी पीछे नहीं हटता। कल सोनी डॉन का किस्सा ख़त्म होकर ही रहेगा। वो सपाट लहजे से कहकर वहाँ से निकल गया। वो तीनों साकित और जामिद बैठी थी। इंस्पेक्टर वकास, क्या बना केस का? IG साहब ने पूछा। वकास इस वक्त इस्लामाबाद में सानिया के पास आया था। सर आज सानी डॉन का किस्सा ख़त्म ही समझे, वकास ने कहा और फिर तेज़ी से बाहर निकल गया। फिर सानिया के अड्डे पर पहुंचा, जिसका पता वो कल रात लगा चुका था। आज सानिया को पकड़ने का सोच चुका था। वो इस अड्डे पर पहुंचा तो सूफी पहलवान और सानिया बैठे थे। वो उसे देखकर चौंक के। सूफी पहलवान ने हाथ उठाए तो सानिया चौंकी। आई एम सॉरी मैम, मैं गवाह बन चुका हूँ, सूफी पहलवान ने कहा। सानिया ने गुस्से से उसकी गिरफ्तारी पर उसे देखा। फिर वो चील की तरह वकास पर झपटी और एक ज़ोरदार लात वकास के सीने पर पड़ी, जो कि वकास को अपना सीना जकड़ता महसूस हुआ। सानिया उड़ती हुई बाहर को लपकी। तुम बाकी सबका पकड़कर पुलिस स्टेशन जाओ, मैं इसको देखता हूँ, वकास ने कहा और फिर तेज़ी से बाहर को लपका। सानिया की गाड़ी आगे जा रही थी और उसके पीछे वकास की गाड़ी थी। अचानक सानिया की गाड़ी हचकोले खाती हुई खाई की तरफ बढ़ती चलेगी, साथ ही गाड़ी खाई से नीचे गिरती चलेगी। वकास ने एक झटके से गाड़ी रोक दी। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियाँ रुकी और सब बाहर निकल आए। सर ये तो मर गई। सानी डॉन का किस्सा ख़त्म हुआ इंस्पेक्टर कमाल, द केस इज़ ओवर, वकास ने कहा और आंखों पर गॉगल्स लगाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हानिया इस वक्त घर में थी। सुबह जब उठी तो इसे पता चला कि सानिया इस्लामाबाद गई है। वो मुतवहिश होकर परिजेब को फ़ोन करने लगी। कुछ देर के बाद परिजेब, नाइला फंदी, जैन इसके घर पहुंच गए। सुबह से शाम हो गई थी। अचानक जैन ने TV ऑन किया तो न्यूज़ एंकर की बात पर वो चौंके। नाजरीन, इंस्पेक्टर वकास ने एक और कारनामा अंजाम दे दिया। हमें अभी इत्तला मिली है कि दहशत का नाम सानी डॉन के अड्डे पर छापा मारकर उसके आदमियों को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने और सैनी डैम वहाँ से
फरार हुई और इंस्पेक्टर वकास ने इसका पीछा किया। जब इस डॉन ने कोई फरार का रास्ता नहीं पाया तो गाड़ी को खाई में गिरा दिया और सानी डॉन की गाड़ी को आग के लिपटों ने पकड़ा और दहशत की वजह ख़त्म करके इंस्पेक्टर वकास ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। हानिया की चीखें निकल गई, इन सब की आंखें नम हो गई। फिर कुछ देर के बाद बेल बजी। जैन तेज़ी से बाहर को लपका। जब वापस आया तो उसके साथ इंस्पेक्टर वकास था। हानिया ने सुर्ख आंखों से देखा, फिर तीर की तरह वकास की तरफ बढ़ी और कस कर इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मिल गई शोहरत तुम्हें, बहुत खुश होंगे अब तुम, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, वो चीखी। वकास ने अपना गुस्सा ज़ब्त किया और फिर इसका बाजू पकड़ा। चलो मेरे साथ, वो संजीदगी से बोला। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाओ, आप लोग भी मेरे पीछे हैं, वो कहकर हानिया को खींचता हुआ बाहर निकल आया। कुछ देर बाद वो सब सफदर के घर के सामने थे। वो सब फ्लैट में दाखिल हुए तो लाउंज में सफदर और सानिया को बैठा देखकर चौंक गए। उन दोनों के माथे पे पट्टियां बंधी थी। हानिया तेज़ी से सानिया की तरफ लपकी और इसके गले लग कर रो दी। अभी न्यूज़ वाले कह रहे थे कि सानी डॉन, वो बोलते बोलते रुकी। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सफदर ने कहा। सानी डॉन मर चुकी, अब सानिया एक आम लड़की बनकर ज़िंदगी गुजारेगी। फिर सफदर इनको सब बताने लगा। अब से कुछ घंटे पहले सफदर अपने फ्लैट पे बैठा था कि बाहर बेल की बजी। वो उठकर बाहर निकला तो इंस्पेक्टर वकास को देखकर चौंका। हाय मिस्टर सफदर। हाय इंस्पेक्टर। बहुत प्यार करते हो तुम सानी डॉन से? वकास ने पूछा। सफदर ने सर झटका। सानिया को मैं बचाना चाहता हूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी आम लड़कियों की तरह जी सके। वकास की बात पर सफदर चौंक कर सीधा हुआ। कैसे करोगे ये आप? सानिया के करीबी आदमी ने सानिया के खिलाफ गवाह बनने का फैसला किया है और वो मरी में अभी पहुंची है। हमें भी पहुंचना है उसके पीछे। वहाँ पहुंचकर सबको अरेस्ट करेंगे और सानिया वहाँ से भागेगी तो इसका पीछा करूँगा और तुम सानिया की गाड़ी में छुप जाओगे। फिर थोड़ी दूर बाद सानिया को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करोगे और गाड़ी खाई की तरफ मोड़ोगे और सानिया को लेकर थोड़ा पीछे कूद जाओगे। फिर गाड़ी को आग लग जाएगी और सानी डॉन का किस्सा ख़त्म। वकास ने अपना प्लान समझाया। फिर वहाँ पहुंचकर वैसा ही हुआ जैसे वकास ने सोचा और कूदते हुए थोड़ी बहुत चोटें आई और फिर हम वापस कराची आ गए। सफदर बोलकर चुप हुआ तो हानिया ने शर्मिंदगी से वकास को देखा। मगर वकास बेटे, तो आईजी साहब को क्या रिपोर्ट दी? सानिया नाइला फंदी ने पूछा। मैंने उन्हें कहा जिस सानिया पे शक था वो आम लड़की और सानी डॉन कोई और लड़की थी, वकास ने जवाब दिया। थैंक यू, आज आपने जो किया इसका एहसान कभी भूलेंगे नहीं, सानिया ने कहा। मिस सानिया मिस्टर सफदर को अपनाकर अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजारे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, वकास ने कहा और फिर बिना हानिया पे निगाह डाले बाहर निकलता चला गया। आज अहमर और फारिया की बारात थी। नाइला अफंदी और ज़ुबैर अफंदी होटल में पहुंचकर मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। कुछ देर बाद बारात आ गई। परीज़ेब गोल्डन और येलो फ्रॉक में मेकअप से मुबर्रा चेहरे के साथ गजब लग रही थी। कुछ देर के बाद सानिया और हानिया अंदर दाखिल हुई। सानिया ने आज पाँव तक ग्रे और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली फ़्रॉक पहन रखी थी और वो इस मशरकी रूप में सफदर के होश उड़ा रही थी। और हानिया ने मूंगिया कलर की फ़्रॉक पहनी थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। दरवाजे पे खड़े जैन और सफदर ने इनका इस्तकबाल किया। सफदर का चेहरा तो उसे मशरकी रूप में देख कर खिला था। अहम अहम बस कर यार, जैन ने उसे हिलाकर कहा तो वह हड़बड़ाकर इर्द गिर्द देखने लगा। फिर इससे पहले वो आगे बढ़ते कि इंस्पेक्टर वकास अंदर दाखिल हुआ। हानिया की आंखों में जैसे ठंडक सी उतर गई। वो मुस्कुराकर जैन और सफदर से मिल रहा था। उसकी मुस्कुराहट हानिया के दिल की धड़कन तेज़ कर रही थी। आइए ना आप लोग अंदर, जैन ने कहा और फिर इन्हें लेकर एक टेबल पर आया जहाँ परीज़ेब और सायरा लोग बैठे थे। फिर वो लोग बैठे बातें करने लगे। कुछ देर के बाद परीज़ेब और सायरा उठकर ब्राइडल रूम से फारिया को लेने चल दी और सफदर और सानिया किसी बात पे मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। क्या बातें हो रही हैं आप ही जीजा जी? हानिया ने छेड़ा। कुछ नहीं साली साहबा, हम सोच रहे हैं कि हमारी शादी के दिन आपकी भी शादी हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। इनकी बात पर हानिया ने चौंक कर वकास को देखा जो वो ज़ुबैर के पास खड़ा बातें कर रहा था। फिर इसका फ़ोन बजा तो वो मोबाइल कान को लगाता हाल से बाहर निकल गया। हानिया मुस्तरिब से कुछ देखती रही, फिर तेज़ी से उठकर वकास के पीछे बाहर निकल आई। अपिया प्लीज़ क्या हो गया आपको? मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी और बहस मत करें। हानिया से मुझे कोई लेना देना नहीं, वकास ने जलाकर कहा और फ़ोन काट कर मुड़ा तो हानिया ने उसे अपनी तरफ देखता पाया तो नज़रें झुका ली। क्या मसला है तुम्हें? क्यों घूर रही हो तुम मुझे? वो दहाड़ा। हानिया उसकी धाड़ पर लड़स गई। एम सॉरी, वो नम लहजे में बोली। मुझे तुम्हारे सॉरी वोरी से फ़र्क नहीं पड़ता और तुम मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। और हाँ, उतारो ये अंगूठी, वकास ने कहा। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। वकास ने गुस्से से इसका हाथ पकड़ अंगूठी
उतारनी चाहिए तो हानिया ने ज़ोर से मुट्ठी बंद कर ली। तो प्लीज़, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बाकी की ज़िंदगी सिर्फ आपके साथ जीना चाहती हूँ, वो सिसक कर बोली। मगर मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। प्लीज़ वकास, सिर्फ एक बार, कभी भी आपको और अपिया को नाराज़ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे खुद से अलग मत करें, वो रोते हुए बोली। वकास ने उसे पीछे धकेला और अपनी गाड़ी में बैठ कर वहाँ से निकल गया। हानिया बोझल कदमों के साथ चलती हुई अंदर आ गई। कुछ देर के बाद फारिया की रुखसती होगी तो वो दोनों भी वापस आ गई। फारिया घूंघट डाले बैठे अहमद का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और अहमद अंदर दाखिल हुआ। वो खनकारता हुआ उसके सामने बैठ गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज तुम, अहमद ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर करते हुए कहा। फारिया के चेहरे पर हया के रंग छा गए। फिर उसने फारिया का हाथ थामा और खिड़की में ले आया। वो देखो चांद फरी, आज तुम्हारे सामने चांदनी मध्यम लग रहा है, अहमद इसकी कमर में बाहें डालते हुए बोला। फारिया ने शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपा लिया। फारिया, मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कभी तुम्हें दुख ना दूँ। अहमद, आपने मुझे पहले भी कभी दुख नहीं दिए, हमेशा मेरे होंठों पे मुस्कुराहट का सबब बने रहे। आपने हमेशा मुझे बताया कि मैं अकेली नहीं, आप मेरे साथ हैं। मैं आज आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं आपसे कभी खुद को दूर नहीं करूँगी, इंशाअल्लाह। वो धीमे से लहजे में बोलती चली गई। अहमद ने सरशार होकर अपने लब इसके माथे पर रख दिए। वकास दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो फरा लाउंज में ही बैठी थी। अभी आप सोई नहीं? कैसे सो सकती हूँ जब मेरे भाई ने मेरी नींदें हराम की हों? तुम मुझे बताओ दो कि अब मैं हानिया और उसकी बहन को क्या जवाब दूँगी, वो तब कर बोली। आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूँगा। वकास, मसला क्या है तुम्हारा? तुम अब इस बच्ची के जज्बात से खेल रहे हो, वो चिढ़कर बोली। अपिया, मुझे बहुत नींद आई है, गुड नाइट, वकास ने कहा और अपने रूम में आ गया और कपड़े चेंज करके वो आंखें मूंद कर लेट गया। अभी कुछ पल गुजरे थे कि वो हड़बड़ा कर सीधा हुआ। उफ, क्या हो गया मुझे? उसके आंसू मेरे दिल को बोझल क्यों कर रहे हैं, वो बड़बड़ाया। फिर पूरी रात वकास ने करवटें बदलते ही गुजारी। फारिया और परिज़ेब पोलैंड में तैयार होने के लिए पहुंच गई थी। पोलर वाली ने जब इन्हें मुकम्मल तैयार कर दिया तो इनका फ़ोटो शूट शुरू हुआ। फारिया ने ग्रे कलर की गोल्डन काम वाली टेल मैक्सी पहनी थी और परिज़ेब ने रेड और स्किन और गोल्डन वाला टेल लहंगा पहना था। फिर कुछ देर के बाद इन्हें होटल ले जाया गया। फारिया तो अहमद के साथ जाकर स्टेज पर बैठ गई, मगर परिज़ेब ब्राइडल रूम में थी। परिज़ेब के तजदीदे निकाह के बाद इसे भी लाकर जैन के पहलू में बैठा दिया गया। जैन ने मोहब्बत से इसे नज़रों के हिसार में लिया। फिर कुछ देर बाद रुखसती हुई। फंदी विला में इसका दोबारा से पुरजोश इस्तकबाल किया गया। फिर कुछ रस्मों के बाद इसे जैन के कमरे में ले जाया गया। वो जब कमरे में गई तो हैरान रह गई, क्योंकि बारी तबीज पर यहाँ तक फर्नीचर भी बदल दिया गया था। पहले सब कुछ डार्क था, मगर अब डेको पेंट फर्नीचर था जिसकी सी ग्रीन शेड थी और पर्दे भी मैचिंग थे। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। परिज़ेब तो खुशी से हर चीज़ छू कर देख रही थी। फिर कुछ देर बाद जैन अंदर आया तो वो उसकी तरफ घूमी। जैन मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ पड़ा। जी तो कैसा लगा मादाम? सब कुछ बहुत अच्छा, वो आंखें मीच कर बोली। जैन ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद के करीब किया। कल तक तो सिर्फ बहुत अच्छा था, मगर फीका था, मगर आज तुम्हारे कदम पड़ते ही खिला खिला सा रोशन हो गया। जैन ने इसके रुखसार से रुखसार मस करते हुए कहा। जैन प्लीज़, इसने घबरा कर कहा। जी जाने जैन, कुछ कहना है क्या? जैन ने शरारती अंदाज में पूछा तो वो सर झुकाकर लब काटने लगी। बुरी बात, इन पे जुल्म मत कीजिए, जैन ने इसके लबों पर उंगली फेरते हुए कहा। परिज़ेब ने जल्दी से अपना आप छुड़ाया और सर पे होगी। क्या हुआ? जैन ने हैरत से पूछा। ये ओवर ड्रेस बहुत तकलीफ़ दे रहा है, वो मुंह बनाकर बोली। हाँ मुझे भी दे रहा है, जाओ ना वॉशरूम में तुम्हारा नाइट ड्रेस रखा है, पहन लो, जैन ने कहा और बेड पर बैठ गया। यू आर सो बोरिंग जैन, वो कमर पर हाथ रख कर बोली। अब मैंने क्या किया? वो जला कर बोला। मेरी हेल्प कर दो। किस चीज़ में? जैन ने आंखें घुमा कर कहा। किस में मदद करते हैं? मेरे जेवर उतारने में, वो तब कर बोली। और जेवर उतारने? मुझे लगा कि जैन ने बात अधूरी छोड़ दी। छी कितने बेशर्म हो तुम, परिज़ेब ने ज़ोर से इसके कंधे पे मारा। फिर जैन ने इसका सारा जेवर उतारने में मदद की और वो उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। परिज़ेब को पोलर वाली ने घर ही तैयार नहीं आना था, तो इसलिए आज मज़े से लाउंज में बैठी नाइला फंदी के साथ बातें कर रही थी।
कुछ देर बाद फारिया और अहमर भी आ गए। वो सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि ज़ुबैर अफंदी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने फारिया के सर पे हाथ रखा और नाइला के साथ आकर बैठ गए। परीज़ेब चाय लेकर कमरे में आ जाना। जैन ने स्पाट चेहरे से कहा और वहाँ से चला गया तो ज़ुबैर अफंदी की आंखें नम हो गई। चाय तैयार हुई तो वो चाय लेकर रूम में आई। चाय पकड़ाकर एक साइड पे बैठ गई। परी जाना इतनी दूर क्यों बैठी हो? जैन ने कहा। क्यों बैठूं मैं आपके पास? जैन इसके गुस्से पे चौंक कर उसे देखने लगा। क्या हुआ परी? क्या था ये सब नीचे? डैड से कैसे बात की तुमने? परी ने गुस्से से कहा। नहीं है वो मेरे डैड, उन्होंने क्या क्या गुनाह की वो सब नहीं भूल सकता। जैन ने कहा। जैन आपने मेरे साथ धोखा किया था ना, अगर तुम अपने लिए माफ़ी पसंद कर सकते तो फिर माफ़ करना क्यों पसंद नहीं? वो डैड हैं तुम्हारे, इस कदर मोहब्बत करते हैं तुमसे और उनके इसी प्यार मोहब्बत के लिए तुम इन्हें माफ़ नहीं कर सकते? मॉम के लिए नहीं माफ़ कर सकते क्या तुम? परीज़ेब ने कहा। जैन ने गहरा सांस भरा। कम। जैन ने से पास बुलाया। परीज़ेब उठकर पास आई तो जैन ने से बाहों में भर लिया। तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा, अब चलो जल्दी से क्यूट सी स्माइल दे दो। परीज़ेब इत्मीनान से मुस्कुरा दी। जैन और परीज़ेब का वलीमे का फ़ोटो शूट हो रहा था। फिर सब लोग फ़ोटो शूट के बाद नीचे एक टेबल पर बैठे हंसी मजाक करने लगे। सफ्तर की शादी कब है? अहमद ने पूछा। इंशाल्लाह सर अगले हफ्ते का सोच रहे हैं और सादगी से शादी होगी। सफ्तर ने कहा। अरे तो फिर बहुत बहुत मुबारक। सब बारी बारी मुबारक देने लगे। और हानिया वकास की भी साथ होगी। जैन की बात पर हानिया और वकास एक दूसरे को देखने लगे। इंशाल्लाह, सानिया ने कहा। एक्सक्यूज़ मी, ज़रूरी कॉल है तो अटेंड कर आता हूँ, वकास कहकर बाहर निकल गया। जैन डैड अभी आए हैं, चलो फ़ोटो बनाते हैं उनके साथ भी, परीज़ेब ने कहा। जैन और फारिया ने एक दूसरे को देखा। फरीजान चलो, अहमद ने कहा। फिर वो लोग ज़ुबैर अफंदी के पास आए। वो चौंक कर उन्हें देखने लगे। परीज़ेब ने जैन को इशारा किया। जैन आगे बढ़ा। डैड, वो हकला कर बोला तो ज़ुबैर अफंदी की आंखें भीगने लगी। फिर फारिया आगे बढ़ी और ज़ुबैर अफंदी का हाथ थाम कर खड़ी हो गई। उन्होंने फारिया को सीने से लगाया, फिर जैन को सीने से लगाया। फिर फ़ोटो शूट के लिए नाहिदा अफंदी की तरफ आ गई। फिर इनकी फैमिली एल्बम के लिए फ़ोटो शूट होने लगा। हानिया वकास को ढूंढती हाल से ऊपर बने टेरेस पर आई तो वो एक साइड पे खड़ा सिगरेट का धुआं छोड़ रहा था। वो होले से चलती हुई इसके पीछे आई। तुम फिर मेरे पीछे आ गई हो? इससे पहले वो कुछ बोलती वकास ने मुड़े बगैर कहा। वकास प्लीज़, मैं जानती हूँ मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मगर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, प्लीज़ मुझे अपना ले। मेरी आपने ज़िंदगी में सिर्फ दुख देखे हैं। अगर मेरा आपका रिश्ता ख़त्म हो गया तो उनकी सारी खुशियाँ अधूरी हो जाएंगी। मुझे फ़िलहाल अपना ले, फिर चाहे आप किसी और से शादी कर लीजिएगा। वो सर झुकाकर बोली। वकास ने उसे देखा, फिर तलख लहजे से मुस्कुरा दिया। एक चीज़ बताओ, तुम अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हो ना, तो फिर मेरे से कल मोहब्बत का दावा किया था, मुझे बताओ इस मोहब्बत के लिए क्या कर सकती हो? क्योंकि बहन को छोड़ने का कहूँगा तो तुम बहन को छोड़ नहीं पाओगी, मगर क्या मेरे लिए दुनिया छोड़ सकती हो? वकास ने शफाक लहजे में कहा। हानी ने आंसू भरी नज़रों से देखा और फिर इस बात में सर हिला दिया। चलो यहाँ से इस दीवार पर आंखें बंद करके चलती जाओ, बच गई तो तुम्हारी किस्मत, वकास ने कहा। हानिया ने इस पत्थर दिल को देखा, फिर मंडेर पर चढ़ गई। फिर इसने आंखें बंद कर ली और वो चलने लगी। थोड़ा आगे चली थी कि इसके कदम लड़खड़ा गए। इससे पहले वो गिरती, वकास ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो दोनों ज़मीन पर गिरे। वो वकास के ऊपर थी। दोनों एक दूसरे की बेतरतीब धड़कनों की आवाज़ सुन सकते थे। अगर वो कुछ पल लेट हो जाता तो वो शायद उसे खो देता। तुम पूरी पागल हो, वकास की गंभीर आवाज़ इस कानों से टकराई तो इसने चौंक कर देखा। फिर वो हड़बड़ाकर सीधी होने लगी तो वकास ने इसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर इसे अपने पहलू में गिरा लिया। तुम जैसी पगली मुझे मिलनी कहाँ है? पता पहली बार तुम्हें देखा तो दिल हार बैठा था, और कल तो तुमने मेरी नींद भी मुझसे चुरा ली, वकास ने इस पर झुकते हुए कहा। वकास पर प्लीज़, वो घबरा कर बोली। वकास ने मुस्कुरा कर उठकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो हानिया ने इसका हाथ थामा और उठ खड़ी हुई। 3 मैजिकल वर्ड बोलोगी तो मानूंगा मैं, वकास ने कहा। आई लव यू, वह कला कर बोली। ये क्या था? ये तो 3 से ज़्यादा नहीं हो गए? वकास ने शरारती अंदाज में पूछा तो वो घबरा कर उंगलियां मरोड़ने लगी। हाँ, ब्लैक बेल्ट लड़की होकर इतनी घबराहट, वकास ने मुस्कुरा कर कहा। प्लीज़ वकास, वो घबरा कर बोली। वकास ने इसका हाथ थामा और फिर नीचे चला आया। बेल बजी तो सानिया ने दरवाज़ा खोला तो सफदर था। तेरे को आज क्या काम है इधर? कल शादी है ना हमारी, सानिया ने तनक कर कहा।
हानिया गुड़िया किधर हो आप? सफदर ने इसे इग्नोर करते हुए कहा। कुछ देर के बाद हानिया अंदर आई तो सफदर ने इसकी तरफ बैग बढ़ाया तो इसने चौंक कर बैग थामा। ये क्या है भैया? ये मेरी बहन की शादी का तोहफा है, यानी आज हमारी मेहंदी तो तुम्हारी खड़ूस बहन ने रखने नहीं दी, मगर आपके लिए सूट लाया हूँ मेहंदी का। सफदर ने कहा। ओह थैंक यू भैया। हानिया खिलौटी, फिर वो उठकर चेंज करने चली गई। कितना मीन है रे तू, मेरे लिए क्यों नहीं लाया? वो तब कर बोली। तेरे को पसंद जो नहीं है तो क्यों लाता तेरे लिए? वो लापरवाही से बोला। तू मुझे गिफ्ट देगा तो मुझे क्यों पसंद नहीं आएगा? वो जलाकर बोला। तुझे कौन सा मुझसे प्यार है? एहसान का बदला चुका रही है। सफदर ने कहा। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, अगर प्यार ना होता तो हाँ की बोलती। और तेरे से हम तब से प्यार करती हैं जब हम जंगल में फंसे थे। भोले से मुस्कुरा दी, भोले से बोली। सफदर की आंखें फैल गई। तू सच बोल रही है? सफदर ने कहा तो वो सर झुका गई। 1 मिनट रुक। सफदर वापस मुड़ा, फिर 10 मिनट के बाद आया तो इसके हाथ में एक और बैग था। ये तेरे लिए है, सफदर ने कहा। सानिया ने खोल कर देखा तो इसका मेहंदी का ड्रेस था। इसका चेहरा खिल उठा। फिर कुछ देर बाद जैन, फारिया और अहमद, परीज़ेब वो चारों भी आ गए। उन्होंने तेल मेहंदी की और फिर रात देर तक वो सब बैठे रहे। परीज़ेब, जैन जल्दी करो, बारात लेकर पहुंचना है हमने। और इधर फारिया और अहमद के होटल से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि दुल्हनें तैयार होने वाली हैं। और ये सफदर तैयार हो गया कि नहीं? नाइला फंदी ने पूछा। बस मॉम, जैन उसी को शेरवानी पहना रहे हैं। ब्लैक साड़ी की फॉल ठीक करते हुए परीज़ेब बोली। उफ लड़की, साड़ी की फॉल नहीं बन रही तुमसे, नाइला फंदी ने कहा। परीज़ेब ने मुस्कुराकर अपनी स्वीट सी सास को देखा। फिर साड़ी की फॉल बनाकर वो बाहर निकले तो सब लोग लाउंज में बैठे थे। वो लोग सफदर की बारात लेकर रवाना हुए। जब होटल पहुंचे तो वकास भी बारात लेकर पहुंच चुका था। फिर निकाह हुए। रुखसती से पहले दूल्हों को स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया। सानिया यार, शादी के बाद अगर सफदर ने उल्टा काम किया तो रख कर मारना 1-2 स्मार्ट मूव। जैन ने छेड़ा। सर, वो चिल्लाया। सानी बिल्कुल ऐसा मत करना। थैंक यू मैम। परीज़ेब की बात पर वो खिल कर बोला। सफदर भाई, बात पूरी नहीं हुई। हाँ सानी, तो मैं कह रही थी ऐसा मत करना कि सिर्फ 1-2 स्मार्ट मूव करो, बल्कि 2-4 हड्डियाँ तोड़ देना। परीज़ेब की बात पर वो सब खिलखिला कर हंस पड़े। दूर खड़ी नाइला फंदी ने नम आंखों से देखा और फिर मुस्कुराकर खड़ी खिड़की से पार चांद को देखने लगी। मैं नाइला फंदी, जो कि सुपर वूमेन, सुपर वाइफ और अब अपने बच्चों की सुपर मॉम हूँ, मगर मैं भी अंदर से आम कमज़ोर सी औरत हूँ जो कि हज़ारों खदशात में जीती रही। और सबसे बढ़कर मैं कैसे कहूँ कि कश्मकश में जीती रही। मेरी इसी कश्मकश से मेरे बच्चों ने इसी चीज़ का सफ़र किया। मगर मेरी ज़िंदगी में आई फिर एक लड़की, परीज़ेब, जो इस कश्मकश से हम सबको निकालती चलेगी। मैं अपनी आइंदा की नस्ल को परीज़ेब जैसा बहादुर निडर बनाऊँगी, जो कि अपने दिल की बात को बिना कश्मकश से सबसे बयान करेंगे। नाइला फंदी ने चांद को देखते हुए पूछा। मम, चलें, फैमिली एल्बम के लिए तस्वीर बनानी है, परीज़ेब ने इनके पास आकर कहा। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर स्टेज की तरफ बढ़ गई। जैन मोहब्बत से परीज़ेब को देख रहा था। आज के लिए बस इतना ही, और उम्मे ईमान फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।